बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खानागावा के जापान में तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जापान में उनकी कैबिनेट, जो लोकल कैबिनेट, उसकी तरतीब के सिलसिले में आज ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान की तरफ से ये छोटी सी तकरीब जो है ना वो मुनक़द की गई है और इसका बाकायदा आगाज जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। और उसके लिए मैं दरख्वास्त दूंगा जनाब मोहम्मद नबी साहब से कि वो तिलावत कुरान पाक जो है ना वो यहाँ पे उसकी सआदत हासिल करे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نواز شریف کے چند اشعار جو میں نے ابھی پڑھے، وہاں پہ حاضری کے بعد باقاعدہ طور پہ اس تقریب کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں، جب بھی کہیں چینج، تبدیلی یا انقلاب آیا ہے تو وہ شخصیات کے رویے پہ نہیں، ان کے نظریات پہ آیا ہے کہ کون اچھا نظریہ لے کے آتا ہے، کون اس قوم کی حالت کو بدل سکتا ہے، کون اس قوم کو ایک باعزت اور ایک غیرت والا مقام جو ہے دنیا میں دلا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس شخص میں اس کی پرسنل جو کریکٹر ہے اس میں صرف ایک دو چیزیں جو ہے وہ نوٹ کی جاتی ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہو، دیانتدار ہو اور اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہو۔ اس کے ساتھ کون سے لوگ اٹیچ ہیں، کون سے لوگ اس کے اس انقلاب میں اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آندھی یا طوفان چلتا ہے، جب سونامی آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے آگے کون سی چیز آ رہی ہے، وہ کس سے ٹکرا رہی ہے اور اس کے ڈرا بیکس کیا ہوں گے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو نظریات بندہ لے کے آیا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے، اس کے نظریات کیسے ہیں، اس کا اپنا پرسنل کریکٹر کیسا ہے۔ اور جب آپ اس کو ووٹ دیں یا اس کو سلیکٹ کریں، کم از کم آپ کو اپنا ضمیر جو ہے وہ ہلکا محسوس ہو۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں نے ایک بندے کو جو ہے نا ایک غلط سلیکشن کر لی۔ آپ اپنی سلیکشن پہ مطمئن ہوں، اور جب بھی کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ نظریات پہ اٹیچ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پرسنالٹی، لیکن موسٹلی جو وہ بندہ نظریات اپنے دے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں اپنی قوم کو یہاں تک لے کے جاؤں گا، میں اس کا وقار یہاں پہ لے کے آؤں گا، تو لوگ اس کے نظریات کو دیکھ کے جوگ در جوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پاکستان میں 15 سال تک دیکھے بڑی سٹرگل کی، اور انہوں نے ایک نظریہ پاکستانی عوام کو دیا کہ ابھی تک جو پاکستانی عوام پس رہی تھی برے حالات میں، اور دو پارٹیاں جو اپنی اپنی باری کے حساب سے پاکستانی لوگوں کو پیس رہے تھے، اس میں عمران خان صاحب نے اٹھ کے یہ ایک نعرہ لگایا کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا، میں تبدیلی لے کے آؤں گا۔
जब लोगों ने ये देखा तो लोग इमरान खान साहब के साथ जोग दर जोग नहीं मिल रहे, वो उनके नजरियात के साथ मिल रहे हैं। आपने सुना होगा जवेद हाशमी साहब ने अल-ऐलान कहा था अपने जलसे में कराची वाले में कि इमरान खान साहब मैं आपके जो कौम के साथ वादे हैं उनकी वजह से आपके साथ जो है ना शामिल हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान साहब मुझे आपसे बड़ा प्यार है तो मैं आपके पास आ गया हूँ। उन्होंने उनके नजरिए की तायद की थी। और मैं समझता हूँ कि जो लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो सब अपना पीटीआई इमरान खान साहब के नजरियात की कदर करते हैं और उनके साथ उनके दस्तोपा बनना चाहते हैं। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है अपने भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे कि इस काफिले के अंदर शामिल हो जाएं ताकि हम अपने मुल्क के साथ मुहब्बे वतन होने का सबूत दे सकें। तो इस सिलसिले में अब यहाँ पे जो एक कबीना तरतीब दी गई है लोकल खानागावा केंद्र की जापान में, मैं दरख्वास्त करूंगा जहाँ के हमारे जो तसद्दुक हमीद साहब हैं कि वो जरा उनका यहाँ पे अपने हमारे जापान के जो सदर हैं खालिद अफरीदी साहब उनसे उनका इंट्रोडक्शन करवाएं और आप खानागावा केंद्र में जो एक्टिविटीज हैं पीटीआई की वो इनको तफसील से जो है ना वो आगाह करें। जनाब तसद्दुक हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो मेरे दोस्त जो भाई इतनी दूर दूर से आए हैं तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि वो तशरीफ लाए। और हमने कोशिश की है कि इस मीटिंग के साथ साथ थोड़ी सी आपकी खिदमत भी की जाए, अगर उसमें कोई कमी पेशी हो तो माजरत है। दूसरा ये है कि जो अफरीदी भाई भी आए हैं जिस सिलसिले में, उसके लिए मैं तसद्दुक हमीद और मेरे जो दोस्त हैं ये एजाज भाई हैं, इनका नाम दिया है सीनियर नायब सदर के लिए। और जनरल सेक्रेटरी जो हमारे हैं वो राना साहब हैं, आजम साहब, वो भी पाकिस्तान गए हुए हैं। और जो नायब सदर हैं वो नायब सदर नवीद भाई हैं और दूसरे नायब सदर जो हैं वो शहजाद साहब हैं। और जनरल सेक्रेटरी राना आजम साहब और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान भाई और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर भाई ये बैठे हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मैंने इनको कॉल की और अपने जो पीटीआई के मुतल्लिक इनको बताया। बहुत सारे लोग तो वैसे ही दिल में पीटीआई के लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं और बहुत सारे दोस्तों ने, बल्कि इन लोगों में से अक्सर ने मुझे खुद फोन करके पूछा है कि कब आना है और कहाँ आना है। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की जो मोहब्बत है वो सारे दोस्तों के दिलों में भी है और अब हमारे साथ सारे साथ देने के लिए भी जोग दर जोग मिल रहे हैं। और यहाँ जो है तकरीबन 1 साल से जो मेरा यार्ड में अक्सर पीटीआई के छोटी छोटी मीटिंगें भी हम करते थे और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अक्सर बातें भी होती थी। और जब से ये हाशमी साहब आ गए हैं इंशाल्लाह, तो ये इसके बाद बहुत सारे दोस्त जो हैं वो खुद राब्ता करके हमारे साथ चलने को तैयार हैं। अभी कुछ साथी सलामी हारा के हैं, उन्होंने आज आना था, वो किसी वजह से नहीं आ सके, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बताया है अफरीदी भाई को। आइंदा जो मीटिंग रखेंगे उधर उनमें ज्यादा से ज्यादा जो है साथी इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। तो आज जो है ये मैं तारफ करवा रहा हूँ दोस्तों का, तो इंशाल्लाह आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें कि जो हमारे मुल्क को चाहिए, जो पीटीआई की जरूरत है, हम उस पर पूरा उतर सके और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना हक अदा कर सके। और अपने दोस्तों का भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा साथ दें और जो सच है सबको पता है, जैसे अभी बात की भाई ने कि नजरियाती मामला हैं और मुल्क जो है इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार है, हमने उसके लिए इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए ही काम करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। ये जनाब
खानागाह वकिन के सदर तसद्दुक हमीद साहब थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अपनी जो उन्होंने यहाँ पे छोटी सी कैबिनेट अपना पीटीआई की तरतीब दी है, यहाँ पे अपना पीटीआई को प्रमोट करने के लिए लोगों के दिलों में पीटीआई के नजरियात जो है ना वो पहुंचाने के लिए उनका वो तारफ करा रहे थे। अब मैं इस समेटते हुए इस सारी गुफ्तगू को जल्द अज जल्द जो है ना वो चाह रहा हूँ कि हमारे जो सदर साहब हैं खालिद आफरीदी साहब, उनसे जो है ना इनको मुबारकबाद का जो है पैगाम वो इन ओहदेदारान को मिलना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई जो है ना हम करनी चाहिए ताकि खानागाह कैंट में जो पीटीआई के और जो दोस्त अहबाब जो हमदर्दियाँ रखते हैं, जो मिलना चाह रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं अपने मुल्क के लिए पीटीआई के साथ मिलके, उनको ज्यादा हौसला अफजाई उनकी की जाए। और मैं अभी दरख्वास्त करता हूँ जनाब पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान के सदर खालिद आफरीदी साहब से कि वो इन दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए अल्फाज जो है ना चंद हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम खालिद फरीदी और ऑफिशियली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान का मरकजी सदर हूँ। तो आज मैं तसद्दुक साहब के यहाँ आया हूँ। इन्होंने काफी अरसे से ये हमें बुला रहे थे यहाँ पे खानागाह वकिन में कि आए और हमारी यहाँ पे सूबाई सतह पे तश्कील दी जाए, जिसके सिलसिले में सीनियर नायब सदर आरिफ न्याजी साहब भी आए हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राशिद समद साहब भी आए हुए हैं मेरे साथ, और एग्जेक्टिव मेंबर ताहिर मजीद साहब भी हैं और नदीम साहब भी हैं जो इब्राकी कैंट से तशरीफ लाए हैं। और आज एक और मैं नॉमिनेशन करना चाहूंगा, मलिक इम्तियाज साहब आए हैं मेरे साथ इब्राकी कैंट से। ये भी आज से ये ऑफिशियली यानी कि हमारे एग्जेक्टिव मेंबर में शामिल है पीटीआई जापान में। तो आप कह रहे हैं हाथ उठाएंगे। थोड़ा सा ट्रैक हमारा थोड़ा सा निकल गया था तसद्दुक साहब से। एक्चुअली ये अभी सदर नहीं है, इन्होंने अपने आप को सदर साहब कर दिया है। बहरहाल ये कि अभी नॉमिनेशन नहीं की थी। बहरहाल ये कि गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता आदमी सीखता रहता है, ऐसे इवेंट जब होते हैं। तो इन्होंने जो एक टीम बनाकर दे रखी है मुझे यहाँ पे सदर के लिए तसद्दुक हमीद साहब हैं और सीनियर नायब सदर इजाज अहमद साहब हैं, नायब सदर मोहम्मद नवीद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी राना आजम साहब हैं। ये आजम साहब भी बहुत बड़े जाले हैं, ये 2-3 इवेंट में हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो अभी मेरा ख्याल पाकिस्तान में हैं ये लोग ना। तो नायब सदर के लिए मोहम्मद शहजाद साहब भी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवानुल्लाह साहब हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर साहब हैं। तो मैं तो जाती तौर पे इन लोगों को नहीं जानता हूं, मगर ये कि उम्मीद करता हूं कि जो भी पीटीआई के अंदर शामिल हो रहे हैं दोस्त, वो वाकई मुहब्बे वतन हैं। और इसके अलावा जी और ओहदे देने की बात जहां तक होती है, ये एक बहुत बड़ा एक कॉज होता है। यहाँ पर तो हर आदमी ये चाहता है मुझे सदर बना दिया जाए, मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए। इसी तरह मरकज में भी ऐसा ही है कि यार मुझे बड़ा से बड़ा ओहदा दिया जाए। मगर जब मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ कि 3 साल पहले जब मैंने ये ऑर्गेनाइज शुरू की जापान के अंदर, तो मुझ पर लोग हंसते भी थे, ताने भी देते थे और तंगा पार्टी भी कहते थे हमें। तो ये सब सहा मैंने, और बड़े यानी कि अच्छे दोस्तों ने मुझे मेरी हौसला अफजाई भी की कि नहीं खालिद फरीदी साहब कोई मसला नहीं, आप चलते रहे, इंशाल्लाह ताला एक दिन कारवां बन जाएगा। और मैं आज ये देख रहा हूँ कि तसद्दुक साहब जैसे लोग जो टीम में शामिल हो रहे हैं, और ये वाकई आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा कारवां बनेगा पीटीआई में। तो आज से मैं ये अनाउंसमेंट करता हूँ ऑफिशियली। और ये जो नाम है यहाँ तक नहीं रहते, ये जो आप ये लिखे हैं ना आपके नाम, आपके ठीक है। और ये नाम जो है सेंट्रल ऑफिस में जाते हैं बाकायदा,
ये ऐसा नहीं कि ये मेरी ज़ात तक महदूद रहेंगे या इनकी ज़ात तक महदूद रहते हैं, इनकी बाकायदा फोटो के साथ हम लोग भेजते हैं पीछे सेक्रेटेरिएट में। तो आप लोग किसी किस्म की, अभी इजाज साहब ने अभी एक कहा है कि अगर किसी को एतराज हो इनके सदर बनने पे, वो भी आप एतराज कर सकते हैं मेरे सामने, वो अभी हम इलेक्शन वाइज करवा देते हैं अगर कोई अगर ये समझता है तो और अगर कोई ओहदा लेना भी चाहे तो ये स्टेप डाउन भी हो जाएंगे पार्टी के लिए। ये कोई फर्दे वाहिद की वो पार्टी नहीं है। मेरी जगह पर भी अगर कोई आना चाहे तो मैं भी स्टेप डाउन होने के लिए तैयार हूँ। ये पीटीआई जो है, मैं एक चीज आप वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये कोई मोरोसी जमात नहीं है। ये इसमें बिलाशुबा जो मेरिट का बिल्कुल अमल दखल रहता है। जो आदमी जितना किरदार अदा करता है अपने सियासी तौर पे, पीटीआई के तौर पे, उतना ही वो आगे बढ़ता रहता है। और जो आदमी चाहे तसद्दुक़ साहब हूँ, मैं हूँ, अपना न्याजी साहब हूँ या कोई भी A to Z हो, अगर उसका किरदार फाल नहीं है और वो पार्टी के लिए फाल किरदार अदा नहीं करता है तो लाजमन उसको स्टेप डाउन होना पड़ेगा उसमें। तो ये हमारा एक यहाँ का एक मंशूर का हिस्सा भी है जो हमने बना रखा है। और बहुत सारे दोस्त आप लोगों से पूछते हैं कि पीटीआई का मंशूर क्या है। सबसे बड़ी बात है, अभी आपने कराची का जलसा देखा होगा खान साहब का, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है पूरी कौम से कि मैं पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ और फलाई रियासत। और इंसाफ के तौर पे जो हमारा लोगो है पार्टी का, इंसाफ जो है स्थायी तौर पे मिलेगा। गांव से लेकर पंचायत से लेकर एक हारी से लेकर एक अमीर आदमी को कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा और हर पूरे पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती होगी। वही इंसाफ एक अमीर आदमी को भी मिलेगा और गरीब आदमी को भी वही इंसाफ दिया जाएगा। एजुकेशन पे भी उन्होंने बात की है कि अगर कोई अमीर आदमी का बच्चा वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, अभी मैं सुन रहा था कि वो एक हमारा कॉलेज बहुत मशहूर चल रहा है उधर, क्या नाम है जी वो उनका, खुर्शीद साहब का, बिकन हाउस बिकन हाउस, इन्होंने कुछ एतराजात भी किए। बीकन हाउस वाले पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनको वाज़ेह खुर्शीद कसूरी साहब से मेरी फोन पे बात हुई है। हाशा लिल्लाह, मैं हल्फिया कहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जितने भी गरीब आदमी के बच्चे बीकन हाउस में फ्री तालीम लेंगे। ये यानी कि वो मामूली बात नहीं है। एक आदमी कुर्बानी दे के आदमी चेंज लाता है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं आज पाकिस्तान में, हमारी पीटीआई की जमात में जितने भी आ रहे हैं, जो कोई कहता है जी चले हुए कारतूस हैं, कोई कहता है जी वो गिराए गए हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। उनसे तजुर्बा हासिल करते हैं। जैसे मैं मशवरा कर लेता हूँ ताहिर मजीद साहब से, तसद्दुक़ साहब से, राशिद साहब से। हालांकि मैं सदर हूँ कि मैं हर फैसला मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं मुशावरत पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ और मैं एडवाइस करूंगा अपना तसद्दुक़ साहब से कि खानागावा के अंदर जो भी प्रॉब्लम या जो भी इवेंट करें, ये सबसे मुशावरत करें, सबको एक लेवल पर लेके आए, एक बनाएं अपना, एक हफ्ते में 1-2 दिन या एक महीने में 1-2 दिन का अपना इवेंट बुलाएं, चाय वाय पिए और दोस्तों को की भी सुने और अपना भी सुनाए कि ये है। तो मैं ऑफिशियली आज ऐलान करता हूँ खानागावा के इनके सदर जो हैं तसद्दुक़ हमीद साहब आज से नॉमिनेटेड हैं और सीनियर नायब सदर इजाज अहमद साहब हैं, नायब सदर है मोहम्मद नवीद साहब और नायब सदर मोहम्मद शहजाद साहब है जो मेरा ख्याल अभी नहीं आ सके आज। तो जनरल सेक्रेटरी के लिए राना आजम साहब है, मैंने पहले ही अर्ज किया कि वो पाकिस्तान में है इस वक्त। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी है मोहम्मद रिजवानुल्लाह साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर साहब। ये कहने को तो एक ओहदे हैं, ये कहने को बिलाशुबा एक ओहदे हैं, मगर ये जो आखिरी ओहदा है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ये इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी क्लब को, किसी भी तंजीम को चलाने के लिए। तो मैं
मैं समझता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है और जनरल सेक्रेटरी जो होता है यही टीम को चलाते हैं पूरी ना। तो ये आप पे जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला आपको आप इसको निभाएं अच्छे तरीके से और अच्छी तरीके से खानागावा कैंप में आप पीटीआई जापान को फाल करें। और आखिर में मैं ये एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि फरवरी के एंड में कायदे तारीख इमरान खान साहब जापान में तशरीफ ला रहे हैं, तो ये उनका दौरा जो है ये पार्टी फंड रेजिंग के लिए है। तो चाहे कोई 1000 चाहे 100 यन दे, चाहे कोई 100 माही, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, तो उनका दौरा इस बाबत यहाँ पे है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उनसे ताउन करें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक यन भी किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। शुक्रिया जनाब साहब। और आप सब दोस्तों का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने हमारा इस्तकबाल किया और हमारी हौसला अफजाई की। यहाँ पे अपना खानागावा कैंप की जो टीम है उन्होंने एहतमाम किया हुआ है कायद-ए-आज़म की बर्थडे के हवाले से केक काटने का, और पीटीआई जापान जो है ना उसकी यहाँ पे बाकायदा तौर पे तंजीम साजी की खुशी में, तो यहाँ पे अपना सदर साहब हमारे खालिद अफरीदी साहब केक भी काटेंगे कायद-ए-आज़म की सालगिरह का, और पीटीआई की तंजीम साजी के सिलसिले में भी। ठीक दोस्तों, पता क्या है कि अभी रोजे की बात कर रहे थे खालिद अफरीदी साहब, उसका एक जिम्मेदारी है कि कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी को वो कैसे परफॉर्म करता है, और पूछ भी ओहदे की होती है। आप देखें कि ओहदेदार को एक छोटा सा जो आवाम का कारकुन है, आवाम का बंदा है, वो भी पूछ सकता है कि यार आपकी वर्किंग क्या है, ये क्यों ऐसे कर रहे हो, और ये लिबर्टी होनी चाहिए। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना देखें, इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने मॉडल जो इस्लामी रियासत का आता है ना, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो दौर हुकूमत है उसका आता है। तो उनके दौर का आप इंसाफ देखें, और वहाँ पे लिबर्टी का ये हाल है कि आप मिंबर पे बैठे हुए हैं जुमे वाले दिन तकरीर कर रहे हैं, और एक बद्दू सा उठ के कहता है कि उमर माले गनीमत में जो चादरें आई थी वो उससे तो हमारी जो सूट पहने हुआ ये तो बन ही नहीं सकता, तो ये तुमने ज्यादा एक चादर एक्स्ट्रा कहाँ से लेके बना लिया। ये देखें, ये जहाँ तक लिबर्टी थी लोगों को, अमीरुल मोमिनीन, और इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन के जिनकी हैबत इतनी थी कि वो बैठे तो मदीने में होते थे, लेकिन रूम और स्पेन और यूरोप पूरा डरता था उनसे, ये उनका जाहो जलाल था। लेकिन एक बद्दू उठ के कह रहा है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये तुम्हारी जो हिस्से में जो चादर आई थी माले गनीमत से, उसे तो आपका लिबास ही नहीं बन सकता, तो आपने कैसे बना लिया, इसका जवाब दें। अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल से आप सब समझते हैं कि एहतसाब, सेल्फ, अपनी सबसे पहले बंदा अपनी अकाउंटेबिलिटी करे, उसके बाद जो है ना वो दूसरों के मामले में देखे कि मेरा दूसरा दोस्त वो क्या करे। और तहरीके इंसाफ इसी बेस पे काम कर रही है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बंदे का अपने आप को सबसे पहले वो देखे, और उसके बाद जो है ना वो तहरीके इंसाफ में अपने मामलात को जो प्रमोट करे, आगे लेके चले। और ये हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है इन वाकयात से, बात करेंगे तो चलती रहेगी। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अब बकायदा तौर पे केक जो है ना वो खाने के बाद काट लो, वरना खाने के बाद उसमें दोबारा भी करेंगे, खाने के बाद खा लें। हाँ, ये तरीका है ना फरीदी साहब काट के
ایک تو بس کھانا کھانے کے بعد چلو ماموں میری گل ریکارڈ دینی ہوتی سارے لے کے آؤ فوراً فکر میں پڑ گیا میں نے بھائی کلیکٹ کر لیں کیا تو فکر مت کر فکر میں پڑ گیا سینئر بندے کام لگایا نا یہ پوری دنیا میں آپ کی نیوز ہے نا راشن بھائی پوری دنیا میں جانے
ہماری فوٹو نہیں آ رہی